Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. How are you all? Fine. Good. Why are you late? टीचर बस फ्राई का क्लास ली. In last class we have discussed about syllabus and topics matter. Okay. Today's class I'm repeating my topic. Walaikum salam. In today's class I'm repeating my topic again for those students who was absent in last class. Okay everyone. So I just take a review of last class. इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो आपके टॉपिक्स रह गए थे वो दोबारा से रिपीट हो जाएंगे. ठीक है. So just for your sake I'm repeating last class topics again. Okay everyone. Only 7 participants are here. I am waiting more participants, and after that I will start my topic. All of you please keep a rough copy and pencil along with you if you want to note down any lecture. So you please keep a pencil and a rough copy along with you, because I know all of you didn't buy rough copies and books yet. So you can use rough copies. There is no issue. When will you purchase your copy so you can start your working copies? Okay. So there is no issue. So let's start our class. I am going to mute your mic. If you want to ask any question, just raise your hand and send me a message in chat box. I will resolve your problems. Okay, everyone. Kindly keep your cameras open, everyone. Fahad, Zainab, Aisha, Shaheen, and Umar. Everyone, keep your cameras open. I want to see your faces. Please. Everyone, please keep your cameras open. No one is allowed to keep your camera closed. Yes, Shami. What do you want to ask, beta? टीचर मैं अभी वो पेंसिल कॉपी ला रहा हूँ तो मैं अपना डब्बी मैंने बंद की. Okay, okay, you can bring. जल्दी से ले आइए भाग के. Okay, Fahad, why your camera is not open and Zainab is also. Open your camera. So I'm going to start my topic, beta. In last class, we have discussed about the syllabus. So here is the syllabus of fall term. In fall term, we will discuss two topics. Okay. Chapter number 8 is matter and materials. In this chapter, we will discuss these topics. Means what is matter and materials. Okay. And structure of an atom and molecules. What is atom? What is molecule? And what is that structure? Okay. And third topic is that स्टेट्स ऑफ मैटर. तो हमारे पास एक पूरा लेंथी टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर. इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज चेंजिंग ऑफ मैटर. ठीक है. तो ये सब हमारे सब टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 10 इज अबाउट फोर्सेस एंड मशीन्स. तो इन दिस चैप्टर वी डिस्कस आवर स्टडी अबाउट नेचुरल साइंसेस यानी कि फिजिकल साइंस. ओके. एंड मास एंड वेट, balanced and unbalanced forces. These are the subtopics only. और subtopics के अंदर मजीद topics हैं. We will discuss all these topics in quantum. Okay, बेटा, this is your syllabus. And in our software you can also find your syllabus also. आपका सॉफ्टवेयर पे जाके आप लोगों को quantum का syllabus इजीली मिल जाएगा. Syllabus manager, go to the syllabus manager and you can find out your quantum syllabus also. This is just for you. You can take a screenshot. If you want to note down your lecture in your copies, you want to note down the syllabus in your copies, so you can note down also. ठीक है. Because right now we don't have your school copies. हमारे पास अभी copies नहीं है. तो जो हम copies purchase कर लेंगे तो जो हम copies के अंदर ये syllabus लिखेंगे. But for this time, we will just note down syllabus in rough copies and you can take a screenshot also. जो आप लोगों को convenient है. ठीक है. आप लोगों ने just अपने पास record रखना है. ठीक है. Now next is our chapter number 1 is matter and materials. We will start our topic from matter and materials. Okay. So हमने क्या पढ़ा था? Matter के बारे में पढ़ा था कि what is matter. So let's start from our topic. What is matter? What is matter? What is matter? Like your books, like a table,
like your school bag and like your food. Everything around you is made up of matter. ठीक है, ये जस्ट आप लोगों को एक छोटी सी डेफिनेशन है, जस्ट टू टेल अस टू रिमेम्बर यू कि एवरीथिंग अराउंड यू, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें, इनका योर चेयर, योर पेंसिल, योर बेड, योर टेबल, एवरीथिंग अराउंड यू इज मेड अप ऑफ मैटर. बट वी विल प्रूव दिस, ये चीज वैसे मैटर है, हम इस चीज को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल. नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट इज द मैटर एग्जैक्टली? एक्चुअली मैटर है क्या चीज? ठीक है, हमें ये पॉइंट आउट करना है कि व्हाट इज मैटर एग्जैक्टली. So this is the basic definition of matter. Anything that has mass means weight. वेट की सेकंड जो वर्जन है वो क्या है? मास. यानी कोई भी चीज जिसका मास होगा ये वेट होगा. एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, व्हाट वी कॉल्ड इट? मैटर. ठीक है, दिस इज द शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ मैटर. अच्छा, हु इज? यस फहद जी. फहद, Miss anything which occupies space and mass is called matter. यस. अच्छा, और कौन पूछ रहा है? किसने रेज हैंड किया है? शामिर ने. शामिर, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नो? ओके. अच्छा, वो पहले आपका जो रेज हैंड. ओके, सो back to the topic. Anything that has mass means weight and occupies space is called matter. This is your actual definition of matter. ठीक है, now हम क्या करेंगे? अब इस चीज को हम प्रूव करेंगे. ठीक है, so look at the some examples of matter. Examples of matter. Here are two glass. One glass is empty and one glass is filled with water. You can see that in picture. Okay, so just let me know both glass have weight or not. ओके, अब मैं वन बाय वन क्वेश्चन आप लोगों से करती जाऊंगी. नाउ फहद, जस्ट लेट मी नो. जी फहद, आप जस्ट मुझे ये बताइए फहद कि बोथ ग्लास हैव वेट और नॉट. जस्ट गिव मी द आंसर, यस और नो. मिस वैसे तो ये जो पानी वाला गिलास है उसका वेट भी ज्यादा होगा, मगर जब पानी खत्म हो जाएगा आई एम जस्ट, और ये जो नॉर्मल शीशे वाला गिलास है उसका वो वेट ज्यादा है. Just let me know both glass, यानी कि empty glass and fill of water glass both have weight मिस or एम्प्टी गिलास not. जो है उसका वेट तो वैसे शीशे से उसका वेट गिलास से उसका वेट रहेगा और पानी है गिलास के अंदर तो उससे थोड़ा सा. ओके फास्ट, गुड. अच्छा, मुझे अब आप ये बताइए, जस्ट लेट मी नो कि ये जो दो ग्लास आपके पास है इसमें एक वाटर फिल्ड है और एक एम्प्टी ग्लास है. ठीक है, बोथ हैव वेट. जो एम्प्टी ग्लास है ऑब्वियसली उसका वेट कम होगा और जो फुल ऑफ वाटर है उसका वेट ऑब्वियसली ज्यादा होगा. ठीक है, लेकिन दोनों ग्लास का वेट है, वेट कम है ज्यादा है ये तो है, लेकिन वेट है. ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया कि एनीथिंग दैट हैज मास, यानी कोई भी चीज जिसका मास होगा वो क्या है? मैटर. यानी कि एक पॉइंट तो क्लियर हो गया. और हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट आपके पास ये है. सेकंड पॉइंट इज दैट एक दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कोई भी मैटर क्या होगा? स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. तो अब आप मुझे ये बताइए क्या ये ग्लास स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? यस आयशा, यस आयशा. Yes, teacher. दिस ग्लास ऑक्यूपाई स्पेस, बोथ ग्लास ऑक्यूपाई स्पेस आयशा. Yes. Okay. Okay, so the definition, from definition the point is clear that anything that has mass or weight, कोई भी चीज जिसका weight होगा या mass होगा और वो space ऑक्यूपाई करेगी, will what we called it matter. एक एग्जाम्पल आपके पास ये हो गई. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के पास क्या है? लुक एट द अदर एग्जाम्पल. जी, लुक एट द एग्जाम्पल. दिस इज टेबल. ठीक है, टेबल आपके घर में भी होगी, आप जो क्लास ले रहे हो बैठ के आपकी इर्द गिर्द भी चीजें होंगी तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें मैटर है. हम एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं टेबल. ठीक है, सबके पास वो टेबल अवेलेबल होगी. तो जस्ट लेट मी नो, वी हैव टू सी if this table is made up of matter. अगर ये टेबल मैटर है so it has some mass और weight, यानी कि इसका मास और वेट दोनों होगा. और it has occupied space. Is it right or wrong? Yes class, is it right or wrong? जी वफा, just let me know बेटा, just let me know. This table is matter or not? Yes वफा, this table is made up of from matter or not? ये मैटर से मिलके बनी, ये मैटर है या नहीं है? Just give me the answer, yes or no. Yes. No, this is not a matter. जी वफा,
जी पापा, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ मैटर 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 है. ओके, हाउ कैन यू से दैट इट इज मेड अप ऑफ मैटर? हाउ कैन यू से दैट? अच्छा, जैनब, आप बताइए जैनब, हाउ कैन यू से दैट इट इज मेड अप ऑफ मैटर? जैनब प्लीज ओपन योर कैमरा. अली अहमद, उमर, ओडिलिया, हुजैफा, ओपन योर कैमरा. हरी अप. And Zainab, just let me know, how can you say that it is made up of, the table is made up of matter? Yes, Zainab. Zainab. Teacher, Hmm? because it has mass and occupies space. Very good. Because it has some mass and occupies space. That's why it is made up of matter. आप देख सकते हैं टेबल का कोई ना कोई वेट होगा, होगा वेट. इसका मतलब से एक पॉइंट ऑक्यूपाई, और कहीं भी आप टेबल का रखोगे तो ऑब्वियसली इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, की कोई ना कोई जगह घेरेगी. तो ऑब्वियसली हमारे पास इस एग्जांपल से पॉइंट क्लियर हो गया कि टेबल का आपके पास क्या एक मैटर है. ठीक है, यानी कि एवरीथिंग अराउंड यू विच हैव स्पेस, विच हैव सम मास और ऑक्यूपाइज स्पेस, व्हिच इज व्हाट वी कॉल्ड इट मैटर. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. अब आप लोगों को जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं देने जा रही हूँ ना, वो थोड़ी डिफरेंट है. वो एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट है, उस एग्जांपल को जरा गौर से समझिएगा. ठीक है, तो इसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगी. ठीक है बेटा, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या हो रहा है? कौन बताएगा? जैनब बताइए, क्या हो रहा है? आयशा आप बताइए. टीचर हवा में फेदर्स उड़ रहे हैं. एयर इज ब्लोइंग, हवा चल रही है. ठीक है, एयर इज ब्लोइंग. यस. ठीक है, अब उसमें आप feathers उड़ रहे हैं टीचर. एयर इज ब्लोइंग. अब आप क्या कहेंगे? द इज एयर मेड अप ऑफ मैटर? क्या एयर में मैटर है? क्या एयर हवा मैटर से मिलकर बनी है? इफ इट इज मेड अप ऑफ मैटर, दैट तो ऑब्वियसली ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी और इसका कोई वेट भी होगा. अगर एयर मैटर है तो ऑब्वियसली या तो ये स्पेस भी रखेगी और ये वेट भी रखेगी. और हमें ये बात प्रूव करनी पड़ेगी. वी हैव टू प्रूव दिस पॉइंट दैट इफ एयर इज मेड अप ऑफ मैटर, so obviously it have to space, some occupy some space and have weight. But we should have to prove this by an example. हम इसको प्रूव करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू. ठीक है, नाउ लुक एट द एग्जाम्पल. एग्जाम्पल की तरफ आइए. अच्छा, जस्ट लेट मी चेक द चैट बॉक्स. ओके, नाउ लुक एट दैट पिक्चर. हमारे पास दो बलून है, एक ब्लोइंग बलून है और एक हमारे पास विदाउट ब्लोइंग बलून है. ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास टू बलून है. वी हैव टू बलून. एक में जो है एक बलून जो है ब्लो है और एक जो बलून ब्लो नहीं है. ठीक है, दोनों बलून को हमने किस पर रखा है? वेट मशीन पर रखा है. ठीक है, जो हमने एम्प्टी बलून को वेट मशीन पर रखा तो उसका वेट कितना आया? 2.95. ओके, नोट डाउन दैट वेट. जब हमने एम्प्टी बलून को वेट मशीन पर रखा तो द वेट इज 2.95. लेकिन जब हमने ब्लोइंग बलून को वेट मशीन पर रखा तो वेट विल बी इंक्रीज and the weight is 3.5. You can see that in picture clearly. The weight will be increased 3.5. अच्छा, एक बात तो हमारे पास ये हो गई. ठीक है, यानी कि ये बात हो गई बलून जो आपके पास एयर की कॉमन एग्जाम्पल है. जब आप हवा के जरिए, यानी कि जब आप बलून में आप अपने मुंह के जरिए, आप मुंह के जरिए जब एयर ब्लो करते हो, आपकी हवा में क्या है? ऑक्सीजन. आपके मुंह में क्या है? ऑक्सीजन है. तो जब आप ब्लो करते हो, ऑक्सीजन आपके पास क्या? गैस है. ठीक है, और ऑक्सीजन गैस है. तो हवा में जो है इस तरह की 7 टाइप्स की गैसेज है. ठीक है, जो क्या है? एयर में मौजूद है. तो ऑब्वियसली जब आपके मुंह में जो गैस है, जब आप उसको एयर में ब्लो करोगे तो उसमें हवा बढ़ जाएगी. हवा बढ़ जाएगी तो इसका मतलब एयर है, यानी कि एयर है. जब आपने बलून में गैस फिल करी तो क्या हुआ? जो एम्प्टी बलून था उसका वेट उतना ही रहा, कम रहा. ठीक है, लेकिन जब आपने उसमें एयर भरी, जब आपने उसमें एयर फिल करी तो उसका वेट बढ़ गया. ठीक है, अब आपने कुछ पॉइंट्स से प्रूव करने हैं. वो पॉइंट्स क्या क्या है? अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से करूंगी, आप लोगों ने मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर देंगे. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच बलून हैज मोर वेट? किस बलून का वेट ज्यादा होगा, एम्प्टी बलून का या फिल्ड बलून का? ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हुजैफा. हुजैफा, ओपन योर कैमरा. जी हुजैफा. हुजैफा, कैन यू हियर माय वॉइस? Yes, miss. Okay, now Huzafa, just let me know which balloon has more weight, empty balloon and filled balloon.
यस सुलेखा? filled. Filled balloon. Very good. Your answer is correct here. Obviously, the filled balloon has more weight. जो balloon filled है गैस से, air से, उसका weight ज़्यादा होगा. Now the next question is that, of course, the balloon which are filled with air. ठीक है? Now next question. It means that air has mass और it has some weight. इसका मतलब ये बात प्रूव हो गई कि air क्या है? मास है और इसका कुछ वेट भी है. ठीक है? एयर क्या है हमारे पास? उसका कुछ ना कुछ मास और वेट दोनों है. ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि एक पॉइंट प्रूव हो गया हमारे पास. कौन सा पॉइंट प्रूव हो गया? कि एयर में क्या है? वेट है. एयर क्या रखती है? वेट रखती है. ठीक है? उसको बलून का वेट भी ज्यादा हो जाएगा ना. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज एयर ऑक्यूपाई स्पेस? क्या हवा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी? अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम उमर. यस उमर, बताइए उमर. उमर हो रही है, आप बताइए. यस हो रही है. जस्ट एयर ऑक्यूपाई स्पेस? क्या हवा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी? एक पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया कि एयर हैज मास. ठीक है? नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट एयर डज एयर ऑक्यूपाई स्पेस? यस हो रही है? No. नो? आर यू No. श्योर? आर यू श्योर ओरिलिया? Yes. ओके. Yes. चल लाइए, अब और कौन बताना चाहता है? शमीर आप बताइए. What teacher? Does air occupy space? Yes teacher. How Shamir? Teacher, because it is matter. Consequently clear है कि it is made up of matter. जैसे हमने बताया कि obviously जब हम बलून को, एक बलून को और एक एम्प्टी बलून को रखेंगे एक जगह पर, तो वो दोनों की स्पेस लेगा या नहीं लेगा? मुझे बताइए. नहीं लेगा? लेगा ना? यस और नॉट? ये लेगा. विच बलून ऑक्यूपाइज स्पेस? ऑब्वियसली वो स्पेस लेगा. अब मुझे ये बताइए, विच बलून ऑक्यूपाइज मोर स्पेस? एम्प्टी बलून या फिल्ड बलून? यस. हो जाना. विच बलून ऑक्यूपाइज मोर स्पेस? एम्प्टी बलून या फिल्ड बलून? कौन सा बलून ज्यादा स्पेस लेगा? जल्दी से नो बोलेगा, मुझे पता था. Yes. विच बलून ऑक्यूपाइज मोर स्पेस? एम्प्टी बलून एंड फिल्ड बलून? जी शमीर बताइए. जी जैनब आप बताइए. उमर? टीचर filled balloon. Filled balloon. Filled balloon occupies more space. Okay. Now next is, it is proof. यानी कि ये बात प्रूव हो गई है एग्जाम्पल से that air has mass and occupies space. So air is made up of matter. तो आपके पास जो हवा है, यानी कि जो एयर है, आपके इर्द गिर्द जो मैटर है, वो भी किससे मिलके बनी है? मैटर से मिलके बनी है. क्यों? बिकॉज इट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस. और हमने ये बात कैसे प्रूव करी आपके सामने? हमने ये बात ऐसे प्रूव करी. अच्छा, ये पिक्चर देखिए. ये पिक्चर देखिए. आपको इस पिक्चर में बहुत सारी चीजें दिखेंगी. आपके पास एक कंप्यूटर है, एक सैंडविच है, वाटर है, एक फिश है, एक आयरन रॉड, एक पर्सन है. ठीक है? बहुत सारे दरख्त है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर. एवरीथिंग अराउंड यू, everything around you including the air is made up of matter. आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो हवा ही क्यों ना हो, तो तमाम किससे मिलके बनी है? मैटर से. अच्छा, आप लोग एक बात बताइए मुझे. एक IQ लेवल का क्वेश्चन मैं आप लोगों से करने जा रही हूँ. इज ह्यूमन इज ऑल्सो मेड मैटर? अच्छा, सबके माइक अनम्यूट कर रही हूँ. अब सब वन बाय वन मुझे आंसर देंगे. ठीक है? सबके माइक अनम्यूट है. अब मुझे ये बताइए कि ह्यूमन बीइंग आल्सो मैटर? Yes. हाउ कैन यू से दैट? टीचर वो मास ऑक्यूपाई स्पेस भी करते हैं. Because we have some weight and we also occupy some space. That's why we also call it human is also a matter. ठीक है? Okay, clear all of you? So what is matter? आज की क्लास में आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होना जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में जब मैं आप लोगों से पूछूंगी कि व्हाट इज मैटर, everyone should have to answer that what is matter. Anything that has some mass, यानी कि weight, और occupy space, तो what we called it? मैटर. ठीक है? एग्जाम्पल्स आप लोगों को मैंने वाटर की दी, फिल्ड वाटर ग्लास, एम्प्टी ग्लास, टेबल की एग्जाम्पल दी आप लोगों को, और आप लोगों को मैंने एयर की एग्जाम्पल दी. एयर इज ऑल्सो अ मैटर, बिकॉज अगर आप बलून में हवा भरते हैं, तो उसके अंदर ब्लो करते हैं बलून को, तो ऑब्वियसली आप उसमें हवा भर रहे होते हैं. ठीक है? तो वो जो हवा है, जब आपने उसको फिल्ड किया, तो आपने क्या नोटिस किया? व्हाट विल यू ऑब्जर्व? जो एम्प्टी बलून था और जो फिल्ड बलून था,
दोनों ने स्पेस तो ऑक्यूपाई करी, लेकिन क्या था, दोनों ने स्पेस कम कम ऑक्यूपाई करी अपने अपने साइज के अकॉर्डिंग, और वो जो एम्पलीफायर फ्रीडम होता है उसने अपने वेट के अकॉर्डिंग जो वेट शो किया वेट मशीन पे, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू हैव क्लियर द पॉइंट दैट व्हाट इज मैटर, एनीथिंग, मेरे साथ साथ सब रिपीट कीजिए, एनीथिंग Anything that that has mass has mass as means mass weight, means weight, and weight and occupy and occupies space space is called is is called called matter. matter. Good. So all of you remember this definition. इस definition का आप लोगों ने याद रखना है. वफा, do you want to ask anything? कुछ पूछना चाह रही हैं आप? अच्छा, अब आप लोग बात बताइए, मैंने आप लोगों की वीडियो शेयर की थी ग्रुप पे, आप लोगों ने वो वीडियो देखी? yes अच्छा, Yes. ये जो हमारे पीपीटी अभी हमने बनाए हैं, पीपीटी कुछ वीडियो से रिलेटेड ही है कुछ, ठीक है, तो आप वो वीडियो देखें, उसमें आगे आप लोगों के पास स्टेट्स ऑफ मैटर भी आएगा, लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एटम और मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। सो फॉर टुमारो क्लास इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द एटम और मॉलिक्यूल, कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, Sun ठीक क्या हो है? रहा है सन? ओके एवरीवन, Sun. ओके एवरीवन। सो काइंडली आज का जितना भी आप लोगों का लेक्चर था, इस लेक्चर को आप फिर से सुनिएगा, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम टुडेस लेक्चर। नेक्स्ट क्लास आप लोगों से पहले आज की क्लास के सवाल किए जाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। जो वीडियो आपको शेयर करेंगे वीडियो में अगेन सॉफ्टवेयर पर शेयर करूँगी, आप वीडियो फिर से देखिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड मैं क्विज कंडक्ट करूँगी, इसमें उस वीडियो से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। जो तो क्विज एवरीवन कब होगा? इन नेक्स्ट वीक में क्विज रखिए, जब आप लोगों की कॉपीज और बुक्स आ जाएंगे तब रखिए, ठीक है। ओके एवरीवन, ठीक है बेटा। सो आज के लिए इतना ही। सो ऑल ऑफ यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यहाँ पे